जैसे एससी है, एसटी है, पॉपुलेशन के हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, पॉपुलेशन के हिसाब से उनको बढ़ावा मिल रहा है, आगे बढ़ने का एक मौका मिल रहा है। इस तरह से पॉपुलेशन बीसीस का है लगभग 60% तक है अभी, पर उनका रिजर्वेशन देखिए 27% और धनराशि की तो बात ही ना। बोला है कि केंद्र सरकार ही अभी शायद विरोध कर रही है, क्योंकि और तो जिनको करना है केंद्र सरकार को ही करना है। अभी इतने सारे राज्यों ने असेंबली में इसके बारे में रेजोल्यूशन पास कर दिया, सारे पॉलिटिकल पार्टीज रोड पे आके ये कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए, करवाएंगे। वो नहीं करवाएंगे, कर रहे, इसलिए तो हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है। हम उनसे करवा के रहेंगे। ये तो कोरोना के कारण हम लोग सिर्फ सैंपल सर्वे पे यहाँ पे आए हुए कुछ लोग। हमारे बच्चों को 100% स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, हमारे बच्चों को रहने के लिए हॉस्टल नहीं है, हमारे बच्चों को एजुकेशन की फैसिलिटी अच्छी। इसी मोदी जी के अकेले के कहने से थोड़ी होगा, वो तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, अगले साल राष्ट्रपति बन जाएंगे, लेकिन बाकी 70% जो जनता पे भीख मांग रही है, उन्हें पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं है, उन लोगों की फैसिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मैं जंतर मंतर पर हूं, जहां टीडीपी के कई सांसद जो हैं वो जाति जनगणना को लेकर, जो ओबीसी की गिनती की मांग हो रही है उसको लेकर जुटे हैं, जंतर मंतर पर आए हैं। पिछले 3-4 दिनों से जो आंध्र प्रदेश के लोग हैं वो जुटे हुए हैं। सबके हाथ में आप देखिएगा बाबा डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले की तस्वीरें हैं और बैकवर्ड क्लास जो ओबीसी है उसकी गिनती की मांग कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ये तेलुगु में ही अपनी बात कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। सर, व्हाट्स योर डिमांड? We are supporting the BC Welfare Association in their demand for caste-based census in Andhra and Telangana. And it should be done for the country also, not only in these two states. Because there's a basic concept that what cannot be measured cannot be improved. It's a basic thing. If you cannot measure something, then you don't have the ability to know whether it's improving or not. So on that very simple concept, we support the idea of caste census. But central government has denied. I'm not ready to caste census, especially for OBC. Yes, so I think we need to continue our efforts to educate the central government and persuade them. I don't think there's a better chance than today, because now our Prime Minister is also from the BC community. He understands. Every time we've met him in the past also, even when Ram Mohan Naidu, our young MP, has met him before, he's always been very kind and very open and willing to listen. So we have to continue with the efforts. I think at some time we'll have a breakthrough and we should be able to get through. But State Home Minister Nityanand Rai, he belongs to also OBC category. He told in Lok Sabha ki I'm not ready to OBC counting. So that's what I mean. Only with continuous effort we can change the people's minds. What is the political consensus about the caste census in especially Andhra and Telangana? TDP, you are the member of parliament from TDP, but YSR is the ruling government. So you have a political consensus like Bihar? In Andhra Pradesh and in Telangana, there's 100% political consensus. All parties are supporting. All parties? Yes. BJP also included? That you have to ask them, I'm not sure. But all other parties. Thank you. What is the impact of society, especially if you talk about the South India? Karunanidhi also from the OBC category. And what is the percentage of OBC in South India? We don't know, that's the problem. Unless you do census, how do we know? Some people say 50%, some people say 60%, some people say 70%. So what is the real figure is difficult to understand. You need to be able to count and measure in order to understand whether something is improving. Now, if you're not able to understand how many people they are and keep track of their development, how do you know whether the improvement is coming or not? You are also from OBC category, sir? No, I'm from forward caste in Andhra Pradesh. Thanks. I support. Okay. तो ये तेलंगाना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कुछ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात करेंगे। ओबीसी जाति जनगणना को लेकर लोग आए। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट आगे है, एक सेकंड। एक यंग एमपी है, नहीं आप फोटो खिंचवा लीजिए, कोई बात नहीं है। टीडीपी के एक यंग सांसद है मेरे साथ। सर, आप लोग ओबीसी, कैन यू स्पीक इन हिंदी ऑल्सो? हाँ,
क्यों चाहते हैं आप लोग ओबीसी की काउंटिंग? अब पहले तो मिसमैच है जो पॉपुलेशन है और जिस तरह से रिजर्वेशन बढ़ा है या फिर धनराशि इनके ऊपर जो खर्चा हो रहा है, बहुत मिसमैच है। अगर दूसरे वर्ग की तरह जैसे एससी है, एसटी है, पॉपुलेशन के हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, पॉपुलेशन के हिसाब से उनको बढ़ावा मिल रहा है, आगे बढ़ने का एक मौका मिल रहा है। इस तरह से पॉपुलेशन बीसीस का है लगभग 60% तक है अभी, पर उनका रिजर्वेशन देखिए 27% और धनराशि की तो बात ही ना करें। आज क्या 27% इम्प्लीमेंट हो रहा है आंध्र प्रदेश? ठीक से नहीं हो रहा, वो भी ठीक से नहीं हो रहा। मैं केवल आंध्र प्रदेश की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में भी ठीक तरह से नहीं हो रहा। इसके बारे में अगर बीसी लोगों को भविष्य में भी एक लीगल सैंक्टिटी अगर होना है तो जरूर कास्ट बेस्ड सेंसस इसका मूल धारण बनता है। अगर कास्ट बेस्ड बीजेपी ने सेंसस तो मना कर दिया है सर कि हम जाति जनगणना जारी नहीं करेंगे, हो स्टेट होम से अगर माने तो अभी देखा है हमने फार्म बिल्स भी लेके आए, बीजेपी ही लेके आए, फिर लोगों का जो इसके ऊपर जो धरना किया उसके बाद उन्होंने वापस लिया। तो ज़रूर ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने एक बार कुछ बोल दिया तो वही फाइनल है, तो लोगों की बात ज़रूर सुनेंगे। मेरा मानना है कि अगर हम सही तरह से दबाव डालें, आर्ग्यूमेंट तो सही तरह से पेश आए, अगर पार्लियामेंट में हो, जंतर मंतर में हो, कहीं पे भी अगर बात में न्याय है तो ज़रूर बीजेपी भी सुनेगी। बिहार में एक ऑल पार्टी कंसेंसस सहमति बनी है ओबीसी जनगणना को लेकर। क्या आपके यहाँ टीडीपी वाईएसआर दो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी है और कांग्रेस है, ऑल पार्टी कंसेंसस है? ज़रूर, क्योंकि आपने देखा है जो ये ऑर्गेनाइजेशन में अभी मीटिंग चल रहा है उसमें हम शामिल थे तेलुगु देशम से, वाईएसआरसीपी शामिल थी, कांग्रेस भी शामिल थी, तो सबका एक ही वर्ड है इसमें तो कि होना ही चाहिए ये। तो फिर विरोध कौन कर रहा है सर? विरोध तो जैसे आपने बोला कि केंद्र सरकार ही अभी शायद विरोध कर रही है, क्योंकि और तो जिनको करना है केंद्र सरकार को ही करना है। अब इतने सारे राज्यों ने असेंबली में इसके बारे में रेजोल्यूशन पास कर दिया, सारे पॉलिटिकल पार्टीज रोड पे आके ये कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए, लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिक्लाइन कर दिया सर। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये जरूरी नहीं है, लोग कोर्ट भी गए थे। तो मना नहीं किया, जरूरी नहीं है, बोला अगर केंद्र सरकार इसके ऊपर मन लगा के करने का एक भाव रखती है तो जरूर इसको कर सकती है। तो हमारा पूरा आगे का कार्यक्रम ये रहेगा कि किस तरह से केंद्र सरकार को मनाए, किस तरह से उनके ऊपर दबाव डाले। टीडीपी के लिए बड़ा मुद्दा रहेगा आने वाले चुनाव में आंध्रा में ओबीसी जनगणना। टीडीपी को बोला जाता है कि ये बीसी पार्टी है, तो जरूर ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और हम इसको आगे लेके रहेंगे। पहले भी बहुत बार इस विषय पे हमने सदन में उठाया, अपने स्टेट असेंबली में भी बहुत सारे कार्यक्रम इसके बारे में किया, तो जरूर हमारा तो एक प्रधान मुद्दा रहेगा ये और आगे भी इसको लेकर। ऑल्सो फ्रॉम बीसी कैटेगरी? यस, आई एम फ्रॉम बीसी ओनली। बीसी? यस। तो देखिए, ये शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं संसद में इनको देखता रहता हूं, तो ये दो सांसद थे टीडीपी के, तो उन्होंने कहा है युवा सांसद हैं और टीडीपी के सांसद हैं, इनकी मांग है कि जाति जनगणना कराई जाए। तो काफ़ी संख्या में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो लोग हैं वो जाति जनगणना को लेकर पिछले 4-5 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ और वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो ओबीसी के जाति जनगणना की मांग हो रही है, तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सर, कैन यू स्पीक इन हिंदी? कैन यू स्पीक इन हिंदी? आपसे बात करनी थी। नेशनल प्रेसिडेंट है हमारा को। सर, आप हिंदी बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। कितनी आबादी है ओबीसी की आंध्रा में, आंध्रा तेलंगाना में? यहाँ पे नहीं, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र हियर। हम लोग सारे साथ में हैं। 2 मिनट सर, 2 मिनट। आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र सारे स्टेट का ओबीसी यहाँ इकट्ठा आकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द ओबीसी की बंद करो। कास्ट सेंसस को लेकर एक बड़ा मुद्दा है। 1932 में जब अंग्रेज थे तभी जातीय जनगणना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में तमाम जो फैसले हैं वो जाति जनगणना की वजह से वापस हो जाते हैं। पिछले जंतर मंतर पर 7 दिनों से तेलंगाना के लोग जो हैं वो जातीय जनगणना को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके नेता जो है वो मेरे साथ हैं। सर, आप लोग बीसी की गिनती क्यों चाहते हैं? ये देखिए कि बीसी आज इस पूरे देश में
अराउंड 60 to 70% के बीच में है। लेकिन 1932 में जो सेंसस का फिगर था 52%, वो भी आज ही ग्राह्य धर रहे हैं और उसी के आधार पर सिर्फ ग्राह्य धर रहे, फैसिलिटी कुछ नहीं दे रहे। तो जब तक हमारे लोगों की संख्या सरकार को मालूम नहीं गिरेगी, सरकार हमारे लिए वेलफेयर की कोई फैसिलिटी के प्रोविजन। लेकिन सरकार ने तो कह दिया है पार्लियामेंट में कि हम जाति जनगणना नहीं करवाएंगे, ओबीसी का गणना नहीं करवाएंगे। वो नहीं करवाएंगे, कर रहे, इसलिए तो हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है। हम उनसे करवा के रहेंगे। ये तो कोरोना के कारण हम लोग सिर्फ सैंपल सर्वे पे यहाँ पे आए हुए कुछ लोग। क्या होगा, फायदा क्या होगा गिनती से? गिनती से हमें विधानसभा में, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। वेलफेयर स्कीम का सरकार को प्रोविजन करना पड़ेगा। हमारे बच्चों को 100% स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, हमारे बच्चों को रहने के लिए हॉस्टल नहीं है, हमारे बच्चों को एजुकेशन की फैसिलिटी अच्छी। लेकिन आपके लोग तो इन सब मुद्दों पर आंदोलन कर नहीं रहे हैं। बीसी के लोग जो हैं वो मोस्टली लोग फूले पेरियार अंबेडकर को नहीं मानते हैं। आज देखिए, नहीं मानने वाले नहीं मानते होंगे, लेकिन हम तो फूले शाह अंबेडकर की औलाद है। उन्हों का गुण कुछ तो भी हमारे हैं, इसलिए हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। महात्मा फुले ने 1882 में रिजर्वेशन का डिमांड किया था, जिसको 1902 में शाहू महाराज ने इम्प्लीमेंट किया। तो आंध्रा में जो निकाय चुनाव होना था उसमें 27% रिजर्वेशन मिलना था ओबीसी को, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। महाराष्ट्र में तो उसी के लिए झगड़ा चल रहा ना अभी, कि वो इंपेरिकल डाटा कलेक्ट करने की चल रहे। आज हम डिमांड कर रहे हैं कि सारे देश के ओबीसी को अगर 27% पॉलिटिकल रिजर्वेशन देना तो ये सिर्फ केंद्र सरकार दे सकती है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि मैं खुद ओबीसी हूँ और मुझे कोई रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, कोई काउंटिंग की जरूरत नहीं है, जातीय जनगणना की जरूरत नहीं है। ओबीसी मोदी जी के अकेले के कहने से थोड़ी होगा। वो तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, अगले साल राष्ट्रपति बन जाएंगे, लेकिन बाकी 17% जो जनता पे भीख मांग रही है, उन्हें पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं है, उन लोगों के फैसिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी 1994 से कुछ लोग हमारे ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति में जा रहे थे, हक समझ रहे थे, वो भी बंद कर दिया। क्यों लगता है बीजेपी जाति जनगणना के खिलाफ क्यों है? क्यों नहीं सरकार करवाना चाह रही है? उन्हें डर है कि अगर ये ओबीसी को अपनी सही ताकत या सही संख्या जिस दिन मालूम हो जाएगी, ये खुद के आदमी को और जो ओबीसी की बात रख सकता है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। मोदी जी ओबीसी की बात ही नहीं रख रहे। ओके। क्या तो देखिए, ये तेलंगाना के लोग हैं, जाति जनगणना को लेकर एक बड़ा, ये देखिए बड़ा प्रोटेस्ट कॉल कर रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहा था। 7 दिनों से ज़्यादा समय से लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने तो मना कर दिया है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसका रिप्रेजेंटेशन मेंबर चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या नौकरियों में हो, बहुत कम है। लेकिन धीरे धीरे देश भर में फूले पेरियार अंबेडकर के मानने वाले लोग अपने अधिकारों के लिए सचेत हो रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा था तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के, जहाँ के ओबीसी के लोग जो हैं वो जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने कहा है कि वो अपने खर्चे से जनगणना करवाएंगे। अभी टीडीपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश में भी सभी पार्टी जो है वो जातीय जनगणना को लेकर सहमत है। केंद्र सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो जातीय जनगणना कराए। ये खबरें आपको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, क्योंकि वहाँ उनको आरक्षण से, SC ST OBC के अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। ఓకే, పార్లమెంట్ బయలుదేరి ఉంది కాబట్టి దయచేసి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఎందుకంటే దాదాపు नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।